हेलो बेटा। Last time we have done the question number up to 10. Okay. So today we are going to start the question number 11 onwards. So look at the question. What the question is. Question number 11 says. Question number 11. The Cartesian equation of the line is x minus 5 upon 3 is equal to 2y plus 4 upon 7 and 6 minus z upon 2. Its vector equation will be. बेटा देखो जो आपको लाइन की इक्वेशन दे रखे हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ पर x पहले सही है, यहाँ पर y पहले तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, y अकेला होना चाहिए, और यहाँ पर z से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारों के जो हमारे कोएफिशिएंट्स है वो हटाने पड़ेंगे। तो कैसे हटाए जाते हैं मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेशन ऑफ द लाइन in Cartesian form is x minus 5 upon 3 equal to 2y plus 4 upon 7 is equal to 6 minus z upon 2, right? That is x minus 5 upon 3, 2 is a common, यहाँ पे -1 is a common, ओके। तो अब क्या करोगे इसको, x minus 5 upon 3 y plus 2 upon 7 by 2 and z minus 6 on -2, okay. This is the equation of the line. Now the point on the line is -5, नहीं, +5, -2, +6, and direction ratio of the line are 3, 7 by 2 and -2. Therefore, equation of the line in vector form is r vector is equal to 5i minus 2j plus 6k plus lambda times of 3i 7 by 2j minus 2k. That's it. अब आप इसमें देखो बेटा किसमें 7/2 लिखा हुआ है, 7/2 लिखा हुआ बी पार्ट में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, right? Now comes question number 12. Question number 12 is find the acute angle between the lines x minus 4 upon 3, y plus 3 upon 4, z plus 1 upon 5 and x minus 1 upon 4 is equal to this and this, y plus 1 upon -3 is equal to z plus 10 upon 5. Okay, acute angle निकालना है बेटा आपको, ठीक है। देखो बेटा जब कभी हम एंगल निकालते हैं ना cos थीटा, तो हम प्लस माइनस लिखते हैं। प्लस माइनस का मतलब होता है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, दैट इट कैन बी acute and obtuse angle both. But now he is asking for only acute angle. So करेंगे कैसे? Given lines are, देखो लाइन हमें ढंग से एक क्यों लिखी, x minus 4 upon 3, y अकेला है, z भी अकेला है, ठीक है चलेगा, and x minus 1 upon 4, y plus 1 upon -3, z plus 10 upon 5. Therefore, direction ratio of the lines are 3, 4, 5 and 4, -3, 5. Okay. Therefore, cos theta, let theta be the angle
between the lines. Therefore, cos theta is equal to modulus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1 square under root of a2 square plus b2 square plus c2 square modulus. It is equal to modulus 3 into 4 plus 4 into minus 3 plus 5 into 5 upon root of 3 square plus 4 square plus 5 square root of 4 square plus 3 square plus 5 square minus 3 square. So cos theta is equal to modulus 12 minus 12 plus 25 upon root 50 cos theta is equal to modulus 25 upon 50 cos theta is equal to 1 by 2 positive. When cos theta is 1 by 2, cos theta is positive 1 by 2 at 60 degree. Okay, so theta is equal to pi by 3. That is the answer. So question number 12 done. Now comes question number 13. What is question number 13? Come back to the questions. Find the value of k so that the line this and this are perpendicular to each other. दो लाइनों के आपको इक्वेशन दे रखी है बेटा, तो पहले तो देखो वही गड़बड़ है इसके अंदर, लाइनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट है, तो पहले आपको इसको ढंग से लिखना पड़ेगा और फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगाओगे. क्या है परपेंडिकुलरिटी कंडीशन? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन जो उनके सम होता है प्रोडक्ट का वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है. ओके, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, गिवन लाइंस आर x equal to minus y equal to kz, that is x upon 1 y upon minus 1 z upon 1 by k. ठीक है, and x minus 2 upon 1 equal to 2y plus 1 is equal to minus z plus 1, that is x minus 2 upon 1 y plus 1 by 2 upon 1 by 2 is equal to minus z minus 1 upon minus 1. कैसे बना है बेटा वो देख लो. x minus 2 upon 1 मैंने 2 ले लिया कॉमन, अंदर रह जाएगा y plus 1 minus 1 ले लिया कॉमन, अपॉन में ले जाएगा. तो जो एक्स्ट्रा नंबर होता है उसको हम पलट के नीचे ले जाते हैं. ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर. ओके, सो डायरेक्शन रेशियोस of two lines are 1 minus 1 1 by k and 1 1 by 2 and minus 1. ठीक है, as the lines are perpendicular, therefore by the condition of perpendicularity a1 a2 plus b1 b2 c1 c2 is equal to 0, 1 into 1 plus minus 1 into 1 by 2 plus 1 by k into minus 1 is equal to 0. So the answer comes out to be 1 minus 1 by 2 minus 1 by k is equal to 0. It becomes 1 by 2 minus 1 by k is equal to 0. So 1 by 2 is equal to 1 by k, k is equal to 2. Okay, so k की वैल्यू बेटा 2. हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट. डन. Okay, fine. So this question is done. Now come to the next question, question number 14.
What is question number 14? Let us take the picture here. Just a second. So it is question number 14. Okay. Okay. So this is question number 14 that we are going to start. From the find the vector and Cartesian equation which are perpendicular to the lines with equation this and passes through the point this. Find the vector and Cartesian equation of the line which is perpendicular to the line this and this. दो लाइनों के perpendicular. बेटा तो क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में? द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन आपको निकालनी है वो लाइन की जो कि which is perpendicular to these lines and passing through the point this. ओके तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point (1, 1, 1) is x minus 1 upon a, y minus 1 upon b, z minus 1 upon c. ठीक है, तो हमारे को पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता. डायरेक्शन रेशियो निकालना बस हमारा मेन काम है. The given lines are given lines हमारी क्या क्या है? Given lines are x plus 2 upon 1, y minus 3 upon 2, is equal to z plus 1 upon 4 and दूसरी लाइन में क्या दे रखी है? x minus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 3, z minus 3 upon 4. Direction ratios of two lines are क्या क्या है? 1, 2, 4 and 2, 3, 4. As the required line is perpendicular to
both of the given lines. Therefore, by the condition of perpendicularity, जो कंडीशन होती है क्या होती है? कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? A प्लस 2B प्लस 4C इक्वल टू 0। मतलब इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके 0 कर देंगे और ऐसे इस तरह करेंगे। वो क्या हो जाएगा? 2A प्लस 3B प्लस 4C इक्वल टू 0। अब बेटा इन दो लाइनों को सॉल्व करने का तरीका, अब लाइनें हैं 2 और वेरिएबल है 3, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसका तरीका मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था। पहले ABC लिख दो और यहाँ पे ABC लिखो, AB लिख दो बस। अब इनके कोएफिशिएंट लिखो, A का कोएफिशिएंट है 1 और 2, B के कोएफिशिएंट है 2 और 3, C के कोएफिशिएंट है 4 4, फिर A के कोएफिशिएंट है 1 2, B के कोएफिशिएंट है 2 3। पहले तो इनको नीचे लिख दो। अब जैसे आपको A की वैल्यू निकालनी है तो A अपॉन B अपॉन C अपॉन, जब आपको A लेना है तो A से आगे वाले 2 ले लो, B लेना है तो B से आगे वाले 2 ले लो, C लेना है तो C से आगे वाले 2 ले लो। अब A से आगे वाले 2 लेंगे तो क्या बचेगा? 2 3 4 4। अब इसको डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, माइनस का साइन लगाने के बाद 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12। सिमिलरली 4 2 जा 8 माइनस 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। सो A अपॉन माइनस 4, B अपॉन 4, C अपॉन माइनस 1 इक्वल टू क्या ले लो? लैम्डा ले लो, के ले लो, कुछ भी ले लो, लैम्डा ले लिया। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस 4K, B इज इक्वल टू 4K एंड C इज इक्वल टू माइनस K। तो सॉरी, हमने तो लैम्डा लिया था, क्या है? तो हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। ठीक है, अब आप इसी इक्वेशन को जिसको हमने 1 डाला था ना वहां पे डाल दो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x minus 1 upon minus 4 lambda, y minus 1 upon 4 lambda, z minus 1 upon minus lambda। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा थ्रू आउट। जब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन माइनस 4, y माइनस 1 अपॉन 4 और z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। देयरफॉर point on the line is 1 1 1 and direction ratio of the line are minus 4 4 minus 1। Therefore equation of the line in vector form is r vector is equal to I plus j plus k, 1i plus 1j plus 1k plus mu times of minus 4i plus 4j और माइनस k। ठीक है, अच्छा आई जी के ऊपर टोपी पहनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, गांधी जी वाली टोपी जरूरी होती है। ठीक है, लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना। सो क्वेश्चन नंबर also find the angle between these given lines, between the given lines। okay, ये तो हमने पढ़ा ही। अब हमें गिवन लाइंस जो है उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो में पता है। ठीक है, तो एंगल क्या निकलेंगे उसके डायरेक्शन रेशियो देख लो क्या क्या है, 1 2 4 एंड 2 3 4। ओके, लेट थीटा बी द एंगल between the given lines। therefore cos theta is equal to plus minus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1 square root of
a2 square plus b2 square plus c2 square is equal to plus minus 1 into 2 plus 2 into 3 plus 4 into 4 upon root of 1 square plus 2 square plus 4 square root of 2 square plus 3 square plus 4 square is equal to plus minus 2 plus 6 plus 16, 1 plus 4 plus 16, 4 plus 9 plus 16. So it comes out to be plus minus 24 upon root of 21, root of 29. So हमारा आंसर कितना आएगा, उसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. प्लस माइनस कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा. अंडर रूट ऑफ 21 इंटू 29 करना है. 2 to the 4, 9 to the 18 into 20, 9 1 the 9, it will be 609. Okay, that will be the answer. कट कुछ रानी तो कहीं छोड़ना पड़ेगा हमें एंगल. 1 into 2, 2 into 3, 4 into 4, 4 चौक 16, 22 और 2 24. 1 और 4, 5 21, 4 9 13, 16 29. मैं सोच रहा शायद कुछ आंसर कुछ और ना हो रहा, कहीं गलती ना हो गई. सही है. ओके, डन. क्वेश्चन नंबर 15. Find the shortest distance between the lines r vector is equal to this and r vector is equal to this. Okay, कोई बात नहीं. Given lines r vector is equal to 2i minus j plus k plus lambda times of 3i minus 2j plus 5k and 3i plus 2j minus 4k plus mu times of 4i minus j plus 3k. ठीक है, ये हमारे को दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी है. ओके, given lines in Cartesian form are x minus 2 upon 3, y plus 1 upon minus 2, z minus 1 upon 5, and x minus 3 upon 4, y minus 2 upon minus 1, z plus 4 upon 3. Therefore, x1 is equal to 2, y1 is equal to minus 1, z1 is equal to 1, a1 is equal to 3, b1 is equal to minus 2, c1 is equal to 5, x2 is equal to 3, y2 is equal to 2, z2 is equal to minus 4, a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 1, c2 is equal to 3. We know that shortest distance between the lines is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 upon, sorry, a1, b1, c1
A2 B2 C2 का डिटर्मिनेंट अपॉन रूट ऑफ, पहले इसी को ले लो फर्स्ट वाले को, दिस A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला लगता है जिससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें इन सबकी वैल्यू रिप्लेस करनी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 minus x1. So x2 minus x1 is 3 minus 2, 2 minus minus 1, minus 4 minus 1. Okay, A1 B1 C1 is 3 minus 2 5 and 4 minus 1 3. अब आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हुए A1 B1 C1 की वैल्यू रखने मत बैठ जाना, डायरेक्टली क्वेश्चन करना है अब आपको। और वो कैसे करोगे आप? डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हुए -3 प्लस 12 का प्लस 8 का होल स्क्वायर, 4 टू 8 होता है, 4 टू 8 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 5 का होल स्क्वायर, देन इट विल बी 4 9 minus 20 का होल स्क्वायर। ओके, सो डिस्टेंस इज 1 3 minus 5 3 minus 2 5 4 minus 1 3 upon root of 25 plus 1 plus 121। अब हम डिटरमिनेंट को कर देंगे सॉल्व। 1 को रखेंगे -6 प्लस 5, -3 को रखेंगे 9 minus 20, -5 को रखेंगे -3 प्लस 8 अपॉन रूट ऑफ 122 127 147। ओके, सो दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑलवेज कम्स इन पॉजिटिव, देयरफॉर हम मॉडुलस लगा रहे हैं। अब ये डिटरमिनेंट नहीं है जो मैंने अब लगाया, या फिर पूरे के बाहर आप डिटरमिनेंट पहले से लगाते हो, मॉडुलस लगाते हुए चलो, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ है, ढंग से लगाया था। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। ओके, सो इट कम्स आउट टू बी -1 -3 into -11 -5 into 5। Okay, so distance comes out to be -1 plus 33 minus 25 upon root 147। 26 और 7 33, 7 by root 147। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कट रहा है वही पूरा का पूरा। ठीक है, 7 root 49 into 3, so it comes out to be 7 by 7 root 3, so the answer is 1 by root 3 units। अब ये 1 by root 3 को आप root 3 by 3 भी लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे, नहीं तो आप यहीं पे भी छोड़ के आओगे, चल जाएगा। नंबर कटने के चांसेस नहीं। चाहो तो √3/3 भी लिख सकते हो। किताबों में अलग अलग आंसर दिया, तो दोनों आंसर 100% सही। ठीक है, डन। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमने निकाल दिया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इट सेज इन दिस क्वेश्चन? अगेन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। दो लाइनें दे रखी हैं, एंड फेंस वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। अब हमें बताना लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं। इंटरसेक्टिंग होगी तो डिस्टेंस जो होगा हमारा 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो गिवन लाइंस आर
x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z, comma x plus 1 upon 5 is equal to y minus 1 upon 2, y minus 2 upon 1 is equal to z is equal to 2 is equal to नहीं कॉमा है यहाँ पर. ओके, गिवन लाइंस आर, इसको ढंग से लिखो, जरूरी है. x minus 1 upon 2, y plus 1 upon 3, z minus 0 upon 1 and x plus 1 upon 5, y minus 2 upon 1 is equal to z minus 2 upon 0. ठीक है, अब पहले x1 y1 z1 मैं आपको बता देता हूँ. x1 is equal to 1 है, y1 is equal to minus 1 है और z1 is equal to 0 है. a1 is equal to 2, b1 is equal to 3, c1 is equal to 1. Okay, x2 is equal to minus 1, y2 is equal to 2, z2 is equal to 2, a2 is equal to 5, bit 2 is equal to 1, c2 is equal to 0. ठीक है, therefore ये हमारे को लाइंस गिवन है. अब हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए. y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 upon root of a1 b2 minus b1 a2 का होल स्क्वायर, b1 c2 minus c1 b2 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू मॉडुलस x2 minus x1, minus 1 minus 1, 2 minus minus 1, 2 minus 0, it is equal to 2 3 1 5 1 0 determinant upon root of, ऊपर देख देख के पुट मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट यहीं पे करना. 2 1 जा 2 minus 5 3 जा 15 का होल स्क्वायर, 3 into 0 that means 0, minus 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैंने ये भी कर दिया, अब मैं इसको करूंगा, क्या होगा 0 minus 5 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, आप बार बार उसको देखते रहोगे तो सिर्फ वैल्यू ढूंढते ही रह जाओगे. क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी minus 2 3 2 2 3 1 5 1 0 upon root of 169 plus 1 plus 25. पूरे के बाहर मॉड्यूलस का साइन लगा दो क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए बोल रहा हूँ. ओके, दैट कम्स आउट टू बी minus 2 को रखेंगे, 0 minus 1, minus 3 को रखेंगे, 0 minus 5, plus 2 को रखेंगे, 2 minus 15 अपॉन रूट ऑफ 195. क्या आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 2 plus 15 minus 26 upon root 195, 17 9 26 minus 9 root 195, तो 9 by root 195 is the answer. 15.45 नहीं आ रहा, अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं निकलेगा इसका, दैट इज आंसर. ठीक है, तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस निकल गया हमारी क्वेश्चन नंबर 16 का. ये मेरा फिर मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा चेक करूं.
ठीक है, एक सेकंड जरा वेट करो। सो बेटा अब हमारे पास डिस्टेंस जो है कुछ ना कुछ आ रहा है, therefore the lines are not intersecting। ठीक है, ओके फाइन, ये अब हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हमें कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। नहीं 16 ही तो करा अभी हमने, 17 करना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो आप यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है 16 करिए, 15 करिए, 14, ठीक। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i plus 2j minus 4k plus lambda times of I plus 2j plus 2k r vector is equal to this and this। और हमें कह रहा है if the lines intersect find their point of intersection। पहले तो हमें पता लगाना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, फिर हमें पता लगाना लाइन का। ठीक है, गिवन लाइंस आर r vector is equal to 3i plus 2j minus 4k plus lambda times of I plus 2j plus 2k and r vector is equal to 5i minus 2j plus mu times of 3i plus 2j plus 6k। टोपी पहना दो सबको गांधी जी वाली, जरूरी है। गिवन लाइंस इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म आर, क्या बनेंगी कार्टेशियन फॉर्म में, x minus 3 upon 1, y minus 2 upon 2, z plus 4 upon 2 and x minus 5 upon 3, y plus 2 upon 2, z minus 0 upon 6। ठीक है, ये हमारी दोनों लाइन की अब हमने इक्वेशन लिख दी है कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, x1 is equal to 3, y1 is equal to 2, z1 is equal to minus 4, a1 is equal to 1, b1 2, c1 2, x2 is equal to 5, y2 is equal to minus 2, z2 is equal to 0, a2 is equal to 3, b2 is equal to 2, c2 is equal to 6। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस c1 b2 का होल स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, अच्छा इसको पूरे को मॉडुलस जरूर डाला करो। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा मॉडुलस x2 माइनस x1, 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस माइनस 4, a1 b1 c1 1 to 2 3 2 6 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 4
1 to 2, 3 to 6, on root of 16 plus 64 plus 0 whole modulus. अब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे 2 into 12 minus 4 into 6 minus 6 plus 4 into 2 minus 6 upon root 80 modulus. It comes out to be 2 into 8 plus 0 minus 16 on root 80. So distance is 0. Therefore, the lines are intersecting. ठीक है, तो हमारी लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही है. अब हमें निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, तो हमें जो दो लाइनों की इक्वेशन दी हुई ना, अब इंटरसेक्शन का पॉइंट कैसे निकालते हैं वो देखो. पहले हम लाइंस को एक बार दोबारा लिख रहे हैं. गिवन लाइंस आर, गिवन लाइंस है x minus 3 upon 1, y minus 2 upon 2 is equal to z plus 4 upon 2 is equal to lambda. lambda मानो आप कुछ भी मान सकते हो वैसे. और x minus 5 upon 3 is equal to y plus 2 upon 2 is equal to z minus 0 upon 6 is equal to mu. Point on the line is, क्या रखा होगा? जनरल पॉइंट निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है. इक्वल टू लैम्डा रखा होगा, उसको सॉल्व कर दो. क्या हो जाएगा? लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 4. पॉइंट ऑन द लाइन इज, इस लाइन पे क्या पॉइंट बनेगा? 3 म्यू प्लस 5, 2 म्यू minus 2 and 6 mu if the lines are intersecting. भाई अगर ये लाइनें इंटरसेक्ट करें तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर है जहाँ पे दोनों लाइनें के पॉइंट सारे सेम होंगे. यानी कि लैम्डा प्लस 3 जो है वो 3 म्यू प्लस 5 के इक्वल होगा. 2 लैम्डा प्लस 2 जो है 2 म्यू माइनस 2 के इक्वल होगा. और ये हमारा 6 म्यू पे इक्वल होगा. इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है. ये हमारे पास आएगा, सॉरी, लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0 and 2 lambda minus 6 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तीनों लाइनों को एक बार थोड़ा सा अगर कुछ सॉल्व कर सकते हो कर लो, थोड़ा सा हल्का सा. लैम्डा माइनस म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0 and लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है. अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, जैसे मर्जी कर दो. वैसे तो क्वेश्चन आसान ही है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, ज्यादा बेटर है. लैम्डा माइनस म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0. साइन कर दो चेंज. ठीक है, तो इट विल बी माइनस 2 म्यू माइनस 4 इज इक्वल टू 0. माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 4, म्यू इज इक्वल टू माइनस 2. पुट म्यू इज इक्वल टू माइनस 2 इन लैम्डा माइनस म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो लैम्डा माइनस माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4. ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पर
पुट करके देखो आंसर आ रहा नहीं आ रहा। -4 -3 इंटू -2 + 2 = 0। चेक करो, -4 + 6 + 2 = 0 नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है फिर तो क्वेश्चन में। तो 0 = 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लैम्डा और म्यू की दोनों की वैल्यू निकल चुकी है, किसी भी एक पॉइंट के अंदर पुट कर दो। Therefore, put lambda is equal to -4 in the point। क्या पॉइंट है हमारा? lambda +3, मैं यहाँ से कॉपी करके लिख देता हूँ। ठीक है, लिखने का झंझट थोड़ा सा खत्म हो गया। क्या आ जाएगा? -4 + 3, 2 × -4 + 2, 2 × -4 -4, that is -1 -6 -12। ठीक है जी, -1 -6 -12। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ कैसे निकलता है। जो भी आपको लाइंस दे रखी हो कार्टेशियन फॉर्म में, उन दोनों को इक्वल टू लैम्डा या म्यू रख दो। करने के बाद आपके पास पॉइंट आ जाएगा जनरल फॉर्म में। ये जो हमारे पास है जनरल फॉर्म में पॉइंट आ जाएगा। अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कोई लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर, दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे? इक्वल टू रख दोगे, इसको और इसको। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल रखोगे तो आपका क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यूज आ जाएंगी, लैम्डा और म्यू की जो वैल्यूज हैं, और उसको वैल्यूज को आप तीसरी क्वेश्चन में पुट करके देखो क्या वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वो सेम आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्लियर? तो ये हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई थी, हमने तीसरी में पुट करके चेक भी कर लिया था। इससे देखिए बेटा, आपको लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगेन देखो सेम पैटर्न क्वेश्चन है। व्हाट इज आस्किंग फॉर इन द क्वेश्चन? शो दैट द लाइन दिस एंड दिस। आपको दो लाइंस की क्वेश्चन दे रखी है और आपको कह रहा है इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपको उसने डिस्टेंस नहीं मांगा, ध्यान रखना, आपको सिर्फ पूछ रहा है दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको सिर्फ लास्ट वाला पार्ट करना है, जो कि अभी हमने करके दिखाया था अभी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? गिवन लाइंस आर, पहले दोनों लाइनों की इक्वेशन लिख दो, इज इक्वल टू, अब आप चाहो तो इसको इक्वल टू लैम्डा डायरेक्टली रख सकते हो, इज इक्वल टू लैम्डा एंड x - 2/1 is equal to y - 3/4 z - 4/2 is equal to points on the lines are, क्या क्या बनेगा? लैम्डा +2, 3 लैम्डा +2, लैम्डा +3 एंड ए पॉइंट नाम रख दो बी, म्यू +2, 4 म्यू +3, 2 म्यू +4। if these two lines intersect, then points must coincide, मतलब एक ही जगह पर होंगे। that is lambda +2 is equal to mu +2, 3 lambda +2 is equal to 4 mu +3 and lambda +3 is equal to 2 mu +4। और इन सबको एक साइड पे लेके आओ,
lambda minus mu is equal to 0, 3 lambda minus 4 mu minus 1 is equal to 0, lambda minus 2 mu minus 1 is equal to 0. तो सबसे आसान है हमारी पहली और तीसरी इक्वेशन. Number 2, number 3. Solving 1 and 3. Lambda minus mu is equal to 0. Lambda minus 2 mu is equal to 1. साइन कर दो सबके चेंज. क्या हो जाएगा? mu is equal to minus 1. Put mu is equal to minus 1 in lambda minus mu is equal to 0. Lambda minus minus 1 is equal to 0. lambda plus 1 is equal to 0. lambda is equal to minus 1. ठीक है, तो lambda भी minus 1 है, mu भी minus 1 है. Put to verify, put lambda is equal to minus 1 and mu is equal to minus 1 in number 2. 3 into minus 1 minus 4 into minus 1 minus 1 is equal to 0. Minus 3 plus 1, hence verified. That lines are intersecting. लाइन्स हमारी क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, क्लियर, डन. तो हमारी लाइनें इंटरसेक्टिंग है. अब हम क्या करेंगे? पॉइंट निकालेंगे. सो लैम्डा, अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं. पुट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 इन पॉइंट. क्या था हमारा पॉइंट? लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, lambda plus 2, 3 lambda plus 2 and lambda plus 3. ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो. minus 1 plus 2, 3 into minus 1 plus 2, minus 1 plus 3, 1, 5, 2. Therefore, point of intersection is 1, 5, 2. Okay, that's it. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया. डन. ओके, थैंक यू बेटा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. ओके, बाय बाय, गुड डे.